place in different parts of the country against Modi government after the implementation of Citizenship Amendment Act. Demonstrations, however, were mainly held by student bodies, student organizations in different universities as well as on streets. ये जो student bodies हैं या वो organizations जो political parties के साथ linked हैं, इनका प्रदर्शन कहाँ-कहाँ देखा गया? दिल्ली, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और भी कुछ जगह है देश में जहां स्टूडेंट बॉडीज ने प्रोटेस्ट किया। अगर गुवाहाटी की बात करें तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने एक टॉर्च रैली का आयोजन किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सीए के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इनका आरोप यह है कि ये कानून भेदभाव करता है, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, से असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया कईयों ने। In Assam, the nature of protest is different. Here, the protesters were against the grant of citizenship to any foreigner who entered Assam after March 24th, 1971, regardless of the religion. CAA की अगर बात करें तो दिसंबर 31, 2014 तक जो लोग आ चुके हैं, उससे पहले जो लोग आ चुके हैं भारत, उन्हें दिया जा रहा है सिटीजनशिप। असम में लोग कह रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी फॉरेनर को, जो कि 1971 तक असम आया हो, 1971 के बाद असम आया, उसे नहीं मिलनी चाहिए सिटीजनशिप। दे से सीएए एक्सटेंडिंग दिस कट ऑफ ईयर टू 2014 इज अ वायलेशन ऑफ असम अकॉर्ड्स। The state of Assam witnessed massive protests in the year 2019 when Citizenship Amendment Act was introduced by the central government. And now when the rules are notified, again the protests have erupted in the several districts. And today it is the ASU, that is All Assam Student Union, who are protesting over here in Guwahati, demanding that this particular rule, the notification, should not be implemented. In fact, CA and NRC both should not be implemented. They have also knocked the doors of the court, and in fact they also believe that this particular rules that has been notified, the laws that have been introduced, is a threat to their ethnicity, is a threat to their tradition, is a threat to their culture, and it violates the Assam Accord, is what they say. Now let us speak to the protesters who are over here, who are joining the protest, and in fact are carrying out a march, not just today, but they believe that they will be carrying out this march in the next coming days because it violates their right, is what they say. Utpal is joining us, who is the president of ASU. Utpal, what is the main reason of your protest, as you have been citing that CAA and NRC, as they have CAA has been implemented now, you feel that it is a threat to the culture and tradition of the state and the people? See, by virtue of its political majority, the BJP-led NDA government has pushed the people of Assam and Northeast to the edge of ruining, because people must understand that there is a fundamental difference between the anti-CA movement going on in the rest of the country and that going on in Assam and Northeast. In Assam, we have that historic Assam Accord. As per the Assam Accord, when the cutoff year for deportation of illegal foreigners in the entire country is 1948, in Assam we have taken the additional burden of 23 years of illegal migrants. In Assam, the cutoff year is 1971. We already have taken burden of additional migrants. So a small state like Assam cannot take burden of any more illegal Bangladeshis in our state. Assam is not a dumping ground for the illegal Bangladeshis. So our point is very clear. Assam Accord is there. Assam Accord must be implemented clause by clause. Post 1971, we will not allow a single Bangladeshi to get settled in Assam and Northeast. That is why this movement will continue. This movement will continue parallelly on the streets and in the court of law. Well, as the centre notified the Citizenship Amendment Act, the move has sparked a political firestorm in the run-up to 2024 elections. कई political पार्टियों ने प्रदर्शन या तो किया या फिर प्रदर्शन का आह्वान किया, and there are some opposition chief ministers who also asserted they would not implement the CAA in their respective states. और मोर्चा संभाले हुए थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इसका विरोध करेंगी अगर ये किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करता है और वो अपने राज्य में इसको implement नहीं करेंगी. Not only did she question the timing, asking why it has been brought right before the Lok Sabha elections, she would also like to have you believe that CAA is harmful for Hindus in equal measure as compared to Muslims. पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा. ইলেকশনের আগে যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে
আত্মহত্যা করেছিল। তার মানে এখন যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কারার খেলা। আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। भारतीय जनता पार्टी भी इसका जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला खुद गृह मंत्री अमित शाह ने और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आरोप यह लगाया कि जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लिसने और अभी अभी कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहले का सपोर्ट करने वाला भी लोग असम में है, का विरोध करने वाला लोग भी असम में है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसी दिशा में मैं सबको आगे बढ़ने के लिए अपील भी करता हूं। All right, let's open this up and go across to our guests. We have Charu Pragya, spokesperson of the BJP, joining us. We have Tushar Gupta, political analyst, and Kapish Srivastava, national spokesperson of the Samajwadi Party. Thank you very much for joining us. Good morning to all of you. Kapish जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुना होगा अभी आपने गृह मंत्री को, अमित शाह और उनके अलावा बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है, इसलिए भ्रम भी फैलाया जा रहा है। ये तो नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून थोड़ी ही है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इनका एक पॉलिटिकल मूव है। सीएए से भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार का कोई लेना देना नहीं। एंड चुनाव के समय पे क्यों याद आ रही है? 10 साल पहले क्यों नहीं याद आ गई? उस समय क्यों हट गए पूछे? और मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूं, सीएए से इस देश के नागरिकों को क्या मिला जिसके लिए इतना बखेड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी? और जो लोग बंटवारे में हमारे यहाँ के लोग नहीं बने, हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे देश के नहीं रहे, आज उनके लिए हृदय में आपका बड़ा प्रेम है, लेकिन भेदभावपूर्ण क्यों? सभी के प्रति होना चाहिए। और दूसरी चीज ये मैं पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दें कि इससे हमारे देश के जो नागरिक हैं जिनको आप नागरिकता नहीं देंगे, वो भी इस बेरोजगारी में बेरोजगारी बढ़ाएंगे। उनके रोजगार पर जो है वो हमारे जो पुराने हम सारे लोग हैं, हमारे रोजगार पे प्रभाव पड़ेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तो हमें रोजगार दे नहीं पा रही? उनके आने से और भी जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, तमाम चीजें होंगी। क्योंकि सबसे पहले लेना देना जो था वो तो कांग्रेस पार्टी का था, और बीजेपी मनमोहन सिंह का जो स्पीच है राज्यसभा में 2003 में उन्होंने दिया था, उसका भी जिक्र कर रही है कि सबसे पहले मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी। चारू प्रज्ञा, कपिश श्रीवास्तव इज क्वेश्चनिंग द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि जो पहले से यहाँ नागरिक हैं उनकी नौकरी का ठिकाना नहीं, रिसोर्सेज पर जो बर्डन बढ़ेगा उसको कैसे गवर्नमेंट हैंडल करेगी? I love the way they keep shifting the goalpost about this, Swati. But let's begin by explaining certain important issues. At the time of independence, there were 28% Hindus in Bangladesh and पाकिस्तान में 15% थे। सो 28 यहाँ 15 यहाँ। आज पाकिस्तान में 1% हिंदू रहता है। कहाँ गए ये बाकी सारे लोग?
कहाँ गए? आप रोज कहानियां सुनती होंगी कि किसी बच्ची को किडनैप कर लिया, उसका शोषण हो रहा है, उसका धर्म परिवर्तन हो गया, क्या क्या नहीं। उन भयानक कहानियों में मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन एक बात हम याद रखते हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये सारे के सारे इस्लामिक देश हैं, ये सारे मुस्लिम देश हैं, और माना जाएगा और समझा जाएगा कि यहां पर मुस्लिम सुरक्षित हैं, लेकिन यहां कौन सुरक्षित नहीं है? वो बच्चियां जिनके आंकड़े में अभी आपको दे रही थी, कोई सिख सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएगा, या वो जैन होगा, पारसी होगा, क्रिश्चियन होगा, तो क्या भारत माता उनको घर नहीं देगी? एक फर्क है घुसपैठियों में और शरणार्थियों में, और ये फर्क विपक्ष को शायद समझ में नहीं आता। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला मचाया। हल्ला आपने मचाया है, भ्रम आपने फैलाया है, झूठ आप बोलते हैं, जनता को बरगलाने का काम आप करते हैं। देखिए, ये तो अब हो चुका, ये अब हो चुका, और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि भारत माता का दिल इतना बड़ा है कि वो उनके लिए घर बन जाती है जिनकी कोई और जगह नहीं होती जाने की। सो इट्स सच अ सिंपल थिंग, वी आर गिविंग सिटीजनशिप, वी आर टेकिंग नथिंग अवे, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी राइट टू इक्वालिटी। दैट इज द अनदर पॉइंट दैट दे कीप टॉकिंग अबाउट। किसी भी नागरिक के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, किसी से कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। तुषार गुप्ता, you know, on the other hand, you have opposition leaders and in fact chief ministers of the opposition parties who are saying कि आपकी नौकरियां, आपके अधिकार, सब कुछ इलीगल, सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा। Such statements have been made. There are a lot of petitions also pending in the Supreme Court. The netas are calling this law discriminatory, unconstitutional, arbitrary and exclusionary as well. This shows their naivety, Swati. Look, a law can only be unfair and unequal to the citizens of the land. CAA is not for the citizens of India. It's a provision for the 6 persecuted religious minorities of Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. तो यहाँ पर अनइक्वल और अनफेयर का सवाल ही नहीं उठता। आप कह रहे हैं आपका कानून अनफेयर है। अरे कानून तो देश के लोगों के लिए होता है, ये देश के लोग ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारा कानून जो CAA है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को एक्सक्लूड करता है। अरे भाई, वो तो इंडियन सिटीजन ही नहीं है, तो हाउ आर यू मेकिंग दिस कंपैरिजन इवन? एंड नंबर 2, people say our resources would be drained, there would be inflation and whatnot. Swati, the same people 3 weeks ago were making a case for the government to spend rupees 10 lakh crore annually, 1/4 of its budget expenditure on MSP for farmers of only 2-3 states. तब रिसोर्सेज ड्रेन नहीं हो रहे थे, तब परवाह नहीं थी कंज्यूमर्स को महंगाई होगी। आज कुछ हजार रेफ्यूजियों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लाना है, क्योंकि आप जानते हैं चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैन हो, उनके साथ वहां क्या हो रहा है? उनकी बेटियों को किडनैप किया जाता है, फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। आज आपको रिसोर्सेज की चिंता है, ये कुछ नहीं है। बस आप कह रहे हैं इंसानियत बड़ी है इन चीजों से, बट द ऑपोजिशन इज सेइंग कि इन लोगों को सिटीजनशिप देकर, इनकी सिंपैथी हासिल कर बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। चारू प्रज्ञा, तुषार गुप्ता एंड कपिल श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।